আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদমেলখনত আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমাৰ অসম কংগ্ৰেছৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত নেতা শ্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াক আৰু আমাৰ এই সংবাদমেলত আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখা পাইছে যে জাতীয় দলৰ সভাপতি সাংসদ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে, ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে, আমাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ মুখ্য সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞা ডাঙৰীয়া আছে, CPI দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য মুনীন মহন্ত ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ AICCৰ ছেক্ৰেটাৰী পৃথিৱীৰাজ সাথে ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ বিধানসভাৰ উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ চিনিয়ৰ স্পোৰ্টছ পাৰ্চন মহিমা সিং ডাঙৰীয়ানী আছে, আমাৰ NCP দলৰ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ স্বৰ্ণ হাজৰিকা বাইদেউ আছে, আমাৰ CPI দলৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক কনক গগৈ ডাঙৰীয়া আছে, সমাজবাদী দলৰ নেতা ফখৰুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদা ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ মিডিয়া চেলৰ চেয়াৰমেন ভৰত্ন ডাঙৰীয়াও আহি আছে। মই সকলোকে সম্বোধন কৰাৰ লগতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি ইউনাইটেড অপজিশ্যন ফৰাম আছামে আমি অসম চৰকাৰৰ আৰু বিশেষকৈ অসমৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাৰ্যকালত যি অপশাসন, ভ্ৰষ্টাচাৰ, দুৰ্নীতি, স্বজন দূষণ আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰে ৰাজ্যখনত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰে বিষবাষ্প সৃষ্টি কৰি আমাৰ সম্প্ৰীতি, ভাতৃত্ববোধ, সমন্বয় বিনষ্ট কৰিবৰ কাৰণে যি ষড়যন্ত্ৰ, সেই সম্পৰ্কত আমি বিৰোধী দলসমূহে ঐক্যবদ্ধভাৱে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত যেতিয়া সন্মিলন হৈছিলে, সেই সন্মিলনত আমি বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মহা অভিযোগনামা এখন প্ৰকাশ কৰাৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লৈছিল। আৰু এই মহা অভিযোগনামাখন প্ৰস্তুত কৰাৰ যিটো দায়িত্ব আমাৰ বিৰোধী দলে আমি সাংসদ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ বিধানসভাৰ উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক দিছিলোঁ। তেখেতসকল দুজনে প্ৰস্তুতি কৰি প্ৰস্তাৱ কৰাৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ৰ আমাৰ অধিৱেশনত আমি ইয়াক গৃহীত কৰোঁ। আমি আৰু এখন পুস্তিকা ঘোষণা পত্ৰ আমি প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী দিনত আমি জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আলোচনা কৰি আমি ঘোষণা পত্ৰ, আমাৰ কেন্দ্ৰীয় যিখন ঘোষণা পত্ৰ হ'ব, তাৰ লগত আমাৰ অসমৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চয়ো আমি দুয়োখনকে সংযোজন কৰি, কাৰণ ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ন্যায়, 5টা ন্যায় আৰু 25টা গ্যাৰাণ্টি আমাৰ ঘোষণা কৰিছে, সেইখিনি সংযোজন কৰি পেলাই আমি এখন ঘোষণা পত্ৰ খুব সোনকালে কৰিম। আজি মই এই মহা অভিযোগনামা আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই উন্মোচন কৰাৰ আগতে এইখন প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা লোৱা সাংসদ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াক চমুকৈ এষাৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। মাননীয় জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া প্ৰমুখে মঞ্চত উপবিষ্ট অসমৰ ৰাজনীতিৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু বিভিন্ন দলৰ নেতৃবৰ্গ, সকলোৰে নাম লোৱাটো সম্ভৱ নহয় বা সময়ৰ কথা আছে, কিন্তু
দেশত বৰ্তমান কি হৈছে সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে। এটাৰ পিছত এটা কেলেংকাৰী, এটাৰ পিছত আনটো কেলেংকাৰী, মানে ইমান ডাঙৰ কেলেংকাৰীবোৰ সন্মুখলৈ আহিছে যে তাক ঢাকি ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুত চেষ্টা কৰিও পৰা নাই। সেইবোৰ কথা আমি বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছোঁ বা কৈ যাম। অসমত বিৰোধী ঐক্যৰ উপৰিও অসম নাগৰিকৰ যি অসম নাগৰিক সমাজ আছে আৰু ভাৰত জোড়ো অভিযান, ভাৰত জোড়ো অভিযানটো হ'ল ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাত সহায় কৰা যোগেন্দ্ৰ যাদৱৰ নেতৃত্ব। তেখেতসকলে কালি এখন গোহাৰি, তাত মই সভাপতি নাগৰিক সমাজ হিচাপে আপোনালোকে জানে যে কালি আমি এখন প্ৰকাশ কৰিছোঁ, গোহাৰি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। প্ৰায় আমি 16টা দাবী তাত মানে বিষয় উত্থাপন কৰিছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কৈছে অকণমান মানে ঠিকেই কৈছে, কিন্তু এই ডিব্ৰুগড়ত সিদ্ধান্ত নহয়, যিটো সিদ্ধান্ত আমাৰ ইয়াত গুৱাহাটীত যেতিয়া বিৰোধী ঐক্যৰ বৈঠক বহিছিল তেতিয়া এইটো সিদ্ধান্ত হৈছিল যে মহা অভিযোগনামা এখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগে আৰু এখন গোহাৰি কি কয় ঘোষণাপত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। এই মহা অভিযোগনামাখন দায়িত্ব দিছিলে লখিমপুৰ হুছেইন ডেপুটি লিডাৰ আৰু মোক দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে। আৰু সেইমতে এই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি মানে ইমান সহজ নহয় কথাটো, বহুত কাগজ পত্ৰ ঘাটি বহুত কথা উলিয়াই এনেকুৱা এখন আমি অভিযোগনামা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু য'ত 60ৰো অধিক আমি অভিযোগ আনিছোঁ। আৰু আমি চালোঁ যে এখন সাগৰ, মানে ইমান অভিযোগ আছে। 100% যদি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, তাৰ 25টা মানহে মানে ৰূপায়ণ হৈছিল। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি একেবাৰে শূন্য বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে আমি এই মহা অভিযোগনামাত যৎপৰোনাস্তি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইখন আমি মুকলি কৰিব জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই। আৰু ইয়াত আমি প্ৰত্যাহ্বানো জনাইছোঁ যে আমি ইমান তথ্য পাতি কষ্ট কৰি গোটাই এইখন প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, এইখনত যদি কোনোবাই চেলেঞ্জ কৰে আমিও তাৰ মুখামুখি হ'বলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ। গতিকে মই খুব বেছি নকওঁ, এইখন আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে আপোনালোকক দিম। আপোনালোকে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। জনসাধাৰণৰ কাষলৈ লৈ যোৱাটো উচিত বুলি ভাবোঁ, কাৰণ এই কথাবোৰ আমি এবাৰ ভাবি চোৱা উচিত যে আমাক কি ধৰণে অসমবাসী ৰাইজক এটা বিপথে পৰিচালিত কৰা হৈছে আৰু মিছা কথা কিছুমানে কি ধৰণে সমাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰা হৈছে। আৰু মই বেছি নকওঁ, এই মহা অভিযোগনামাখন এতিয়া আমাৰ মাজত আছে আমাৰ মুখপাত্ৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া। মই তেখেতক দুটা বাক্য ক'ব কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি যিখন অভিযোগনামা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে আমাৰ লখিমপুৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া, ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া আৰু অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া, তেখেতসকলক তেখেতসকলক সকলোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অভিযোগনামা এতিয়া প্ৰকাশ পাব, কিন্তু তাৰ আগে মই 2টা বা 3টা বাক্য ক'ব খুজিছোঁ। নম্বৰ 1, আটাইতকৈ ডাঙৰ যদি অভিযোগ আছে সেইটো হ'ল এই চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে। সেই অভিযোগটো হ'ল যে অসমত বৰ্তমান পঞ্জীয়নভুক্ত নিবনুৱাৰ সংখ্যা 32,34,738 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। 32,34,738 জন। ইকনমিক চাৰ্ভে অফ আছাম তাৰ ৰিপৰ্টত স্পষ্টকৈ কৈছে যে 32 লাখতকৈ বেছি মানুহে এতিয়া নিবনুৱা ৰূপে নিজকে পঞ্জীভুক্ত কৰিছে। আপোনালোকৰ মনত আছে যে 2016 চনত যেতিয়া তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলিছিলে কৈছিলে যে অসমত 23 লাখ নিবনুৱা আছে আৰু আমি প্ৰত্যেকজন নিবনুৱাক চাকৰি দিম। এইটো আছিল 2016 চনৰ বিজেপি চৰকাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। 23 লাখ নিবনুৱাৰ ঠাইত এতিয়া বৃদ্ধি পাই গৈ কিমান হ'ল 32 লাখ নিবনুৱা। তাৰমানে
বিজেপি চৰকাৰে তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল। নম্বৰ 1। নম্বৰ 2, বিজেপি চৰকাৰে সাংঘাতিক ধৰণে কৈ থাকে যে নহয় এই চৰকাৰখন সাংঘাতিক ধৰণে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতি ভাল কৰিছে। কৈ আছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা পুঁজি ব্যাপক ৰূপত আহিছে। কৈ আছে যে দিল্লীত এতিয়া একদম পাইপ খুলি দিছে, আমাৰ ইয়াত পানী পৰাৰ নিচিনাকে পইচা আহি আছে। কিন্তু জানি আচৰিত হ'ব যে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে দিল্লীৰ পৰা অহা প্ৰত্যেকটো পইচাৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পালে। দিল্লীৰ পৰা অহা টকাৰ পৰিমাণ সম্পূৰ্ণৰূপে হ্ৰাস পালে আৰু কেৱল ইনকাম বৃদ্ধি ক'ত হৈছে জানেনে? এই বিজেপি চৰকাৰখনৰ দিনত ইনকাম বৃদ্ধি হৈছে কেৱল লোনৰ ক্ষেত্ৰত। কেৱল তেওঁলোকে ঋণ বাহিৰৰ পৰা ধাৰ লৈ এই চৰকাৰখন চলাবলৈ বাধ্য হৈছে। বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এইবাৰ অতি স্পষ্ট ভাৱ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টে চামাৰী অফ দি ফাইনেন্সিয়েল পজিশ্যন অফ আছাম ইয়াত স্পষ্ট ৰূপত কৈছে যে অসমত আজিৰ দিনটোত ধাৰ আছে 1,48,238.37। 1,48,000 কোটি টকাৰ ধাৰ। বেলেগ একো কৰিব পৰা নাই। দুখনমান যে দলং বনাইছে, দুখনমান যে অভাৰব্ৰিজ বনাইছে, সেই অভাৰব্ৰিজৰ গোটেই টকাটো কেৱল আহিছে ধাৰৰ পৰা। অসমৰ ইনকামৰ 20% কেৱল ধাৰৰ পৰা আহিছে। ঋণ লৈ চলোৱা চৰকাৰ, তাৰ বাহিৰে একো নাই। ইনকাম ক'তো বঢ়াব পৰা নাই। অৰ্থনৈতিক অৱস্থা সাংঘাতিক বেয়া। এইটো হ'ল দ্বিতীয় অভিযোগ। তৃতীয় অভিযোগটো হ'ল যে এই চৰকাৰৰ দিনত আটাইতকৈ বেছি বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে। দালিৰ দাম চাওক আপুনি, মিঠাতেলৰ দাম চাওক আপুনি, চিমেণ্টৰ দাম আপুনি চাওক, ৰডৰ দাম আপুনি চাওক। প্ৰত্যেকটো নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ দাম ইমান বৃদ্ধি হৈছে যে এই চৰকাৰৰ দিনত মানুহ জীয়াই থকাটো সম্ভৱ নহয়। আৰু ফৰ্থ, মই 4টা মাত্ৰ বাক্য কম বুলি কৈছিলো। ফৰ্থ, এই চৰকাৰৰ দিনত গণতন্ত্ৰ হত্যা হৈছে। আৰু বেলেগ কথা বাদ দিলো, গণতন্ত্ৰ হত্যাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উদাহৰণটো হ'ল মৃত্যু ঘটিছে অসমত 83 জন মানুহ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত 83 জন মানুহক এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিঙত হত্যা কৰা হৈছে। প্ৰায় 200টা এনেকুৱা ধৰণৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কোনোবা মৰিছে, কোনোবা বাচিছে। পুলিচে ধৰি থকা মানুহক গুলিয়াই দিছে। এটা অভিযোগনামা প্ৰস্তুত কৰিছে, সেইটো উন্মোচন হ'ব। মই এই 4টা বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিয়ে এতিয়া মোৰ বাক্যখন আগবঢ়াই দিছোঁ। মই আমাৰ বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি শ্ৰীযুত দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াকৈ এখন বক্তব্য ৰাখিবলৈ মন। আজিৰ সংবাদমেলত উপস্থিত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শাখাৰ সম্পাদক ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, বিৰোধী দলৰ উপদলপতি আৰু বিভিন্ন দলৰ সভাপতিসকল, আমাৰ বিধায়কসকল, যিখিনি চাৰ্জশ্বিটত আছে সেইখিনি যোৱা মাত্ৰ কেইটামান বছৰৰ আৰু প্ৰতিদিনে তেখেতৰ বা এই চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ আৰু অভিযোগ বৃদ্ধি হৈ আহিছে। সেই গতিকে আমি আৰু নিশ্চিতভাৱে আৰু অধিক অভিযোগনামা তেখেতসকলৰ ওপৰত কৰিব লাগিব। যোৱা সময়ছোৱাত যিখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰে বা গাৰ জোৰেৰে মিছাটো সঁচা কৰিব বিচাৰে, তাৰ বিধানসভাতে আমি প্ৰমাণ পাইছিলোঁ। যেতিয়া মইনা নাই কিবা বুলি এখন আঁচনি ঘোষণা কৰিছিল, তেখেতে কৈছিল যে কলেজৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফিজ ৰেহাই দিয়া হৈছে। কিন্তু মই কৈছিলোঁ যে বেক লাগিলে ফিজ ৰেহাই নহয়, ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত তেওঁলোকে নতুনকৈ এডমিশ্যন ল'ব লাগে। আৰু যোৱাকালি মাজুলী মহাবিদ্যালয়ৰ 4খন কলেজ আছে, জেংৰাই মুখ বা যিবিলাক মাজুলী মহাবিদ্যালয়ৰ অন্যান্য কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আমাৰ কথা বাৰ্তা মতে তেখেতসকলে আমাৰ কথাটোৱে কৈছে যে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাত কোনোবা এটা ছাবজেক্টত বেয়া হ'লে তেওঁলোকে পুনৰ ৰিএডমিশ্যন ল'ব লাগে পইচা দি। সেই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিমান মিথ্যাচাৰ কয় এই কথাটো আজি অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও নিজে প্ৰত্যক্ষভাৱে অনুভৱ কৰে। আৰু একেই কথা যে তেখেতসকলে কিষাণসকলক যি ভূমিপট্টা দিম বুলি মিছন বসুন্ধৰা কৰিছে, তাৰ যোগেদি কিন্তু যিখিনি হ'ব লাগিছিল সেইখিনি হোৱা নাই। বৰঞ্চ আমাৰ যি নীতি আছে অসম চৰকাৰৰ, এই নীতিৰ বিৰুদ্ধে গৈ ৰায়তসকলক উচ্ছেদ কৰা হৈছে। তাৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ যোৱা সময়ছোৱাত মিকিৰ বামুণী গ্ৰান্তত হৈছে এজুৰ পাৱাৰ কোম্পানীক ৰায়তৰ স্বত্ব কাঢ়ি লৈ পাৱাৰ প্লেণ্ট স্থাপন কৰিবলৈ দিয়া হ'ল। এই অভিযোগো আমি যোৱা
ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চৰ বিধানসভাত উত্থাপন কৰিছিলোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ আজিৰ কাকততো প্ৰকাশ পাইছে যে এনৰেগাত এইবছৰ মাত্ৰ 12,000 ব্যক্তিয়ে 100 দিন কৰ্মসংস্থাপন পাইছে, যি সময়ত 60 লাখতকৈ অধিক আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড এনৰেগাৰ শ্ৰমিক পঞ্জীভুক্ত হৈ আছে। আৰু 238 টকা বা তাতকৈ কিছু মজুৰি যিটো দিবলৈকে তেওঁলোকৰ সক্ষম হোৱা নাই। ঠিক তেনেকৈ পলিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো অভিযোগ আহিছে, বিশ্বৰ ভিতৰতে আজি গুৱাহাটী দ্বিতীয়খন পলিউটেড চিটি বুলি বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে ছুইজাৰলেণ্ডৰ সংস্থাৰ সমীক্ষা অনুসৰি। আৰু এইবিলাক হৈছে যেনে যধে মধে কনষ্ট্ৰাকশ্যন, ফ্লাইঅভাৰ, কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্টৰ নামত কৰি অহাৰ বাবে যিবিলাক ৰাইজক সুধি লৈ আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট কি হ'ব, ছ'চিয়েল ইম্পেক্ট কি হ'ব, ইকনমিক ইম্পেক্ট কি হ'ব, এইবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ ছাৰ্ভে নকৰাকৈ একমাত্ৰ কিছুমান কমিশ্যনৰ আশাত চৰকাৰে এই কামবিলাক কৰে বুলি আমি অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ আৰু বহু অভিযোগ আছে, এইবিলাক আমি নিশ্চয় সময়মতে প্ৰকাশ কৰিম। কিন্তু যোৱা সময়ছোৱাত যিখিনি অসম বিৰোধী কাম কৰিলে তাৰ অন্যতম হ'ল যে অসম চুক্তিক উলংঘা কৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন বিধি প্ৰস্তুত কৰিলে। আৰু যিসকল শৰণাৰ্থী, ভাৰতবৰ্ষই শৰণাৰ্থীক সদায় ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত যাক অনবৰতেই আক্ৰমণ কৰা হয়, পণ্ডিত নেহৰুৰ দিনতে দিল্লীত চিত্ৰঞ্জন পাৰ্ক কৰি পূব পাকিস্তানৰ পৰা অহা শৰণাৰ্থীসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া হৈছিল, গুজৰাটত দিয়া হৈছিল, ৰাজস্থানত দিয়া হৈছিল। আমি 2018 চনতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীক অৱগত কৰিছিলোঁ যে ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যত যাক আনিব লাগে তেখেতসকলক আনক, কিন্তু অসম চুক্তিক সন্মান জনাই আমাৰ অসমৰ যাতে নতুনকৈ কোনো বিদেশী সংস্থাপিত নকৰে। কিন্তু বিজেপি দলৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই কৈছে 20 লাখ নতুন ব্যক্তিয়ে তেখেতসকলে নাগৰিকত্ব পাব। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এফালেদি আমাক কৈছে মন্ত্ৰী বিধায়কে কোনো আবেদন জনাব নালাগে, গাঁৱৰ ৰাস্তা পদূলি লাগে যদি 250 ঘৰ মানুহ থাকিলে আবেদন কৰিলে হ'ব। আমাৰ বহু গাঁও আছে য'ত 250 মানুহৰ গাঁৱত থকা ৰাস্তা বেয়া হৈ আছে, 250 মানুহ নাই। এতিয়া নতুনকৈ এই মানুহবিলাকে গাঁৱৰ ৰাস্তা বনাবলৈ 200 ঘৰ বাংলাদেশীক আনি সংস্থাপন কৰিব লাগিব নেকি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। আমাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভাই ডাঙৰীয়াকো মই এষাৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ গৈ বিৰোধী দলসমূহৰ সন্মানীয় সদস্যসকল, ডাঙৰীয়া, প্ৰধান বৰা ডাঙৰীয়া, অতীত দলসমূহৰ সন্মানীয় ব্যক্তিবৃন্দ, সন্মানীয় সাংবাদিকসকল, এক ঐতিহাসিক প্ৰয়োজনত আচলতে এই ঐক্য মঞ্চ গঠন হৈছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্ব, ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বিজেপিক শাসনৰ পৰা আঁতৰোৱাটো এক সময়ৰ আহ্বান আছিল। আৰু এই সময়ৰ আহ্বানক অৱগত কৰি এই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন কৰা ই এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন কৰিছিল। এতিয়া বিজেপিয়ে যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল পূৰণ নকৰিলে, আমাৰ এটা স্বাভাৱিক প্ৰশ্ন বিজেপিলে যে এটা দলক, এখন চৰকাৰক জনসাধাৰণে কিমান প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগলৈকে ক্ষমা কৰি দিব পাৰে? আচ্ছেদনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নহ'ল, মেহেংগাইৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নহ'ল, ৰোজগাৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নহ'ল, বিদেশৰ কলা ধনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নহ'ল। এই সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নোহোৱাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত আটাইতকৈ সৰ্ববৃহৎ অৰ্গেনাইজড কেলেংকাৰী কৰিলে ইলেক্টৰেল বণ্ড। হিন্দু ধৰ্মৰ সুৰক্ষাৰ কথা কোৱা বিজেপিয়ে পাকিস্তানৰ কোম্পানীৰ পৰা পইচা ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ভেকচিন বনোৱা কোম্পানীৰ পৰা পইচা ল'লে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণক বলপূৰ্বকভাৱে ভেকচিন ল'বলৈ বাধ্য কৰোৱা হ'ল। তেওঁলোকৰ বেনিফিটৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ মুনাফাৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাক শিক্ষণ দিব নোৱাৰা হ'ল। তাৰ ফলত 800টা দৰৱৰ দাম 1 এপ্ৰিলৰ বাঢ়িবলৈ গৈ আছে। কিমান ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ আৰু কৰিব? ইডি, CBI, সুপ্ৰিম কোৰ্টকো চেষ্টা কৰিছিল হস্তগত কৰিবলৈ, সামগ্ৰিক গণতান্ত্ৰিক বিধি ব্যৱস্থাটো নিষেধ কৰি দিছে। গতিকে আমাৰ আহ্বান যে ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত, ভাৰতবৰ্ষৰ সৌন্দৰ্য, ভাৰতবৰ্ষৰ একতা সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত
বিজেপিয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ ভংগ কৰাৰ বাহিৰেও ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণক শিখণ্ডী কৰি ভাৰতবৰ্ষত সাংবিধানিকভাৱে আৰু বৈধ প্ৰক্ৰিয়াৰে দুৰ্নীতিক বিয়পাই দি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সম্পদ কুক্ষিগত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ বিজেপিৰ প্ৰতি ভোটদান কৰক। আজিৰ দিনটো সেই সময়ৰ আহ্বান। গতিকে মই আজিৰ দিনটোত বাকী অসমৰ জনসাধাৰণলৈ আপোনালোকক জ্ঞাপন আবেদন জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। মই CPI দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য মুনীন মহন্ত ডাঙৰীয়াকো এষাৰ চমুকৈ ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। অসমৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে মূল কথা কিছু উত্থাপন কৰিছে। আমাৰ যিখন উদ্বোধনী হ'ব তাত সংশ্লিষ্ট, মই সেইখিনি কথাত আৰু ৰিপিট কৰিব খোজা নাই। মই খালি যোৱা কালি বাতৰি কাকতত যিটো ওলাইছে, আমাৰ পলিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী বিশ্বৰ ভিতৰতে 2 নম্বৰত স্থান পাইছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণে যদি কংক্ৰিট নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা চলি থাকে, অচিৰেই গুৱাহাটী বসবাসৰ অনুপযোগী হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত আজি আমি এই অভিযোগনামাত যিবিলাক অভিযোগ আনিছোঁ, সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত আমি নিৰ্বাচনৰ কেম্পেইনৰ কাৰণে এই অভিযোগনামা ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু আজিৰ সময়ত এই অভিযোগটো গুৱাহাটীক বচাওক, ইয়াৰ ওপৰত এটা ব্যাপক কেম্পেইন আমি গুৱাহাটীত যিসকল ৰাজনৈতিক দলৰ আমি কৰ্মী আছোঁ, এটা কেম্পেইন এটা আৰম্ভ কৰাটো অতি সোনকালে আমি বিচাৰিছোঁ। এতিয়া ছুইচ সন্থা এটাই এই তেওঁলোকৰ যিটো AIQ এয়াৰৰ জৰিয়তে এই সিদ্ধান্তত এই ৰিপৰ্টটো দিছে। এতিয়া দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে আমাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এতিয়াও জ্বলি আছে। কালি মিটিং কৰি থকা অৱস্থাত কংগ্ৰেছৰ মিটিঙত গুলীচালনা হৈছে। সন্ত্ৰাসবাদী কেণ্ডিডেটক হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু আজি এই 3 মে'ৰ পৰা জ্বলি থকা মণিপুৰখন ভ্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত আজিলৈকে এটা শব্দ নোলায়। পাৰ্লামেণ্টতো তেওঁ মণিপুৰৰ শব্দটো ক'বলৈ যেন টান পায়, দূৰতহে ক'ব লগা হয়। এতিয়া এইটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কিমান ভাল পোৱা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ মূল ওচৰৰ ৰাজ্য আমাৰ লগত আমাৰ অসমৰ পৰাই খাপ খাটি যোৱা মণিপুৰত আজি যিটো অৱস্থা হৈছে, ইয়াত তেখেতে তাৰ মানুহক নিৰ্ভয় দিবৰ কাৰণে এবাৰ আহিবৰ কাৰণে ভয় কিহৰ? আৰু এই কথাটোত আমি পাৰ্টীয়ে আমাৰ ফালৰ পৰাও আৰু আমি সমস্বৰে তাক ধিক্কাৰ দিব লাগিব। আৰু ইলেক্টৰেল বণ্ড সম্পৰ্কত ৰাইজৰ মাজত আজি ব্যাপক প্ৰচাৰ চলোৱাটো অতি জৰুৰী বুলি আমি বিবেচনা কৰিছোঁ। আৰু লগে লগে আজি আমাৰ ওপৰত বলপূৰ্বকভাৱে অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰবল বিৰোধিতা স্বত্তেও আজি আইন অসম চুক্তিক অস্বীকাৰ কৰি অসম চুক্তি অসমৰ আন্দোলনৰ 700 শ্বহীদৰ ত্যাগক বুঢ়াঙুলি দেখুৱাই তেওঁলোকে এই আইনখন আমাৰ ওপৰত জাপি দিব খুজিছে, বিধি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ। এতিয়া বিধি প্ৰস্তুতক কালি স্থগিত আদেশ নিদিলে এই সুবিধাত তেওঁলোকে নিশ্চয় আগবাঢ়িব। আৰু আমাৰ আহ্বান হৈছে এই সাম্প্ৰতিক সময়ত এইকেইটা যিটো জ্বলন্ত জৰুৰী সমস্যা, এই সমস্যাকেইটাকো ইয়াত ইনক্লুড কৰি আমি অহাখিনি সময়ত ব্যাপক কেম্পেইন এটা, বিশেষকৈ পলিউশ্যন গুৱাহাটী বচাবৰ নামত আমি এইটো আৰম্ভ কৰাৰ পোষকতা কৰিছোঁ। এইখিনি কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি। আমাৰ মাজত PLP দলৰ নেতা চৰণ ডেকা তেওঁলোকে প্ৰমুখ কৰি কেইবাজনো নেতা আছে, কিন্তু সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি আজি মূল কাৰ্যসূচীলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। মই এতিয়া now I would like to request
Honorable AICC General Secretary, former Central Minister, to inaugurate formally the charge sheet against misrule and corruption of BJP government. अब मैं जितेंद्र सिंह सर को महाअभियोग के बारे में बोलने के लिए और हमारा पार्टी का भी बारे में थोड़ा बोलने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का मैं मीडिया के जितने भी साथी विराजमान हैं आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं खास तौर से जो हमारे इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर्स हैं उनका जो मंच पर विराजमान है, खास तौर से हमारे अजीत भुइयां साहब विराजमान हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अखिल गोगोई जी, कंचन जी, गोगोई साहब, हजारिका साहब, प्रवेश बोरवा जी, जगदीश भुइयां साहब, सुनील महंता जी विराजमान, फारूकुद्दीन जी, अहमद साहब विराजमान, धरमजीत रेखा साहब और हमारे नेता विराजमान हैं, CLP लीडर साहब, रॉकीबुल जी हुसैन साहब, सेक्रेटरी AICC हमारे पृथ्वीराज जी साठे साहब, महिमा जी विराजमान हैं, भरत तारा जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता विराजमान हैं, RJ जी के हमारे साथीगण, मीरापुर ठाकुर जी जो हमारी बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी हैं गुवाहाटी शहर से, आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब आए। मैं आपको ले जाना चाहूंगा 2014 का इलेक्शन की ओर, जहां नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े मंचों से बात कही थी, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। ये उनका एक पूरा प्रचार का एक मुख्य बिंदु था। और आप सबों ने देखा है कि इस देश का ही नहीं लेकिन पूरे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला, SBI घोटाला, बॉन्ड का जो घोटाला हुआ है वो आपके सामने आया है। मैं इस मंच से सुप्रीम कोर्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबों ने उसके बारे में लिखा भी है, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पे भी चला है। और जो पहली रिपोर्ट आई है उसमें आप सीधा देख सकते हैं जो कंपनी का पूरा जो कैपिटल है, जिसका पूरी हैसियत है, वो 500 करोड़ रुपए की है, लेकिन चंदा 1200 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? जो 500 रुपए जेब में हो और 1200 रुपए चंदा दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है उसकी शक के दायरे में आता है। जो कंपनी को एक ट्विन टनल बनाने के लिए मुंबई के अंदर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है 14,500 करोड़ का,
उनसे 3 दिन बाद 4,500 करोड़ रुपए बॉन्ड के द्वारा वसूल लिया जाता है। आपने देखा है, जहां ईडी पहुंची है, तीसरे दिन उनने बॉन्ड से वापस पैसा ले लिया उनसे। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को इन्हें एक तरह से अपना कार्यकर्ता बना रखा है। हफ्ता वसूली इसे कहते हैं, सिंडिकेट के रूप में 25 ऐसी कंपनियों ने करा है। ये हफ्ता वसूली कर रहे हैं, सिंडिकेट के रूप में काम कर रहे हैं। आज की जो यह चार्जशीट आपके सामने आई है, ये सिर्फ इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी की अकेले की चार्जशीट नहीं है। ये आसाम की जनता की चार्जशीट है, ये नौजवानों की चार्जशीट है, ये महिलाओं की है, किसानों की है। ये उनने एक चार्जशीट तैयार करी है। आज आसाम की जनता सवाल पूछ रही है, तो मैं आपको निवेदन ये करने के लिए हाजिर हुआ हूं। दिल्ली सरकार का तो आप सब कारनामे जानते हैं, जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों को पूरा देश उनने बेचा है। लेकिन उनने तो बेचा ही है, लेकिन उनने अपना सबसे बड़ा नुमाइंदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को आसाम में लूटने के लिए भेज रखा। आज चाहे चाय बागान की बात हो, चाहे जमीनों के ऊपर भू माफिया की बात हो, हर चीज के ऊपर जिस तरह से करप्शन हुआ, ऐसा कोई नहीं है कि जो काम होता है, चाहे यहां फ्लाईओवर बनता है तो उसके ऊपर, उसके अंदर भी सरिया कहां से आता है वो भी आप सबों को मालूम। रोड बनता है, कोई हाईवे बनता है, ब्रिज बनता है, तो उसके आसपास की जमीन कौन उसको खरीद लेता है। ये साथियों आपके सामने की बात है। और सबसे बड़ी बात तो आप सोचिए कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने गौ माता को एक बहुत बड़ी गौ माता जरूर प्राचीन समय से एक देश का बहुत उसको पूजनीय मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से गौ माता को पूजा, चुनाव के अंदर इस्तेमाल किया, आज वही गौ माता में को दूसरे देशों के अंदर भेजकर सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा है। ये आप सब जानते हैं कि कौन से ऐसे मंत्री और कौन से ऐसे मुख्यमंत्री ये काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवा पीढ़ी के लिए, जो कांग्रेस सरकार ने और जो लंबे समय से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जिस तरह से स्कूली शिक्षा के ऊपर जो ध्यान दिया था, आज उस विपरीत परिस्थितियों के अंदर 7,000 स्कूलें असम के अंदर बंद हो गई और दूसरी ओर शराब की दुकानें हर मोहल्ले के अंदर खुल गई। आप सोचिए, शिक्षा हम नहीं देना चाहते, आज पानी की समस्या आ रही है, बिजली की समस्या आ रही है, लेकिन शराब की कभी भी समस्या नहीं आने वाली। होम डिलीवरी सिस्टम शुरू हो चुका है। तो मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि बहुत बड़े बड़े वादे इनने अपने घोषणा पत्र के अंदर करे थे, और खास तौर से जो हमारी 6 कम्युनिटीज हैं जो एसटी स्टेटस के लिए केंद्र में मोदी जी ने आके 3-3 बार यहां भाषण देके गए, घोषणा पत्र के अंदर इन्होंने बात करी है। और यहाँ के जितने भी यहाँ के मंत्री हैं और मुख्यमंत्री आपसे पिछले चुनाव में वादा करके गए थे, उसका क्या हुआ? एक बहुत बड़ा रोष आसाम की जनता के सामने। इसके साथ साथ जो हमारे चाय बागान के साथी, बहुत लंबे समय से उनकी एक मांग थी कि उनको जो डेली वेजेस हैं, उनको पैसा मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी ने 351 रुपए की बात रखी थी, लेकिन आज 225 और 235 रुपए उनको मिल रहे हैं। ये कब वादे पूरे होने वाले हैं? इसके साथ साथ 25 लाख नौकरियां जो यहाँ की सरकार ने वादा करा था, 2 करोड़ नौकरियां जो मोदी सरकार ने वादा करा था, कहां है वो नौकरियां? और एक अहम बात मैं आपके सामने आज रखना चाहूंगा कि आसाम की एक पहचान
पूरे विश्व के अंदर है, पूरे देश के अंदर है। उसकी संस्कृति है, उसका एक कल्चर है, और उस कल्चर को समाप्त करने के लिए जिस तरह का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, और हमारे कई साथी इस मंच पर विराजमान हैं जिनने उस आंदोलन के अंदर अपनी जान दी, अपना खून और पसीना आसाम के लोगों के लिए उन्हें लड़ाई लड़ी। मैं बात कर रहा हूं साथियों का की, और वही जो लोग आज मंत्री बने हुए हैं, वित्त मंत्री बनी हुई हैं, मुझे बताया गया और मैंने देखा है कि जब का मूवमेंट शुरू हुआ था, तो जब सारे माननीय विधायकों ने का विरोध किया था, उसके ऊपर सबसे पहला नाम अजंता नेओग जी का। आज भारत सरकार और राज्य सरकार का की बात कर रही है, लागू कर दिया उन्होंने। कहां है वो मंत्री, कहां है वो मुख्यमंत्री? उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी के सामने आसाम की जनता की बात रख सके। वो डरे हुए हैं, रिमोट कंट्रोल सरकार है, और इसीलिए आज नाम बन चुका है आसाम का कि सबसे भ्रष्ट सरकार है तो आसाम के अंदर। मैं साथियों ये भी निवेदन आपके सामने करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिकांश प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, और आपसे ही बहुत सारे जो एक तरह के मैसेज आते हैं, जो आपकी भी एक सोच है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छे प्रत्याशी इस लोकसभा चुनाव के अंदर उतारे हैं। एक आम जनता के अंदर खुशी है, और मैं आपको थोड़ा सा उसके ऊपर आंकड़ा देना चाहूंगा कि जो हमारे पार्टी के 6 उम्मीदवार हैं, वो 40 के आसपास की उम्र के। तो युवाओं को एक बहुत बड़ा मौका दिया है कांग्रेस पार्टी ने। उसके अंदर 2 चाय बागान के हैं। जब भारतीय जनता पार्टी चाय बागान की वालों की बात करती है, वहां उनके 3 MP होते थे, अब 1 को ही उन्हें टिकट दिया। कांग्रेस पार्टी ने बोडो, कार्बी, ओबीसी, अहोम, कोच, रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सभी वर्गों को जिस तरह से राहुल गांधी जी ने न्याय की बात करी है, उसके अंदर सभी कम्युनिटीज को, कास्ट को, सभी अलग अलग क्षेत्र के लोगों को मौका मिला। और सबसे बड़ी बात मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा साथियों कि आज कांग्रेस पार्टी के संगठन के अंदर बहुत खुशी है, क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं वो प्रत्याशी संगठन से निकल के आए। कहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कहीं APCC के पदाधिकारी, महिला कांग्रेस और सेवा दल के अध्यक्ष, संगठन के साथियों को टिकट दिया है, मान और सम्मान दिया। इसके साथ साथ मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि, और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा हमारे शीर्ष नेताओं को, कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री खड़गे जी को, माननीय सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, और तमाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं को, क्योंकि जो आगे देश का जो मैनिफेस्टो आने वाला है, घोषणा पत्र आने वाला है, उसके अंदर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का है, उनने एक अलग सेक्शन बनाया है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को एक पहचान दी है, देश के अंदर पहचान दी। भारतीय जनता पार्टी दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट को खत्म करना चाहती है। वो एक अलग कल्चर लाना चाहती है, पूरे देश के अंदर एक अलग कल्चर लाना चाहती है। उनको जो हमारा एक रीजनलिज्म है, जो हमारी पहचान है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भाषा है, उसको खत्म करना चाहती है। मैं ये भी निवेदन आपको करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े मंचों से महिलाओं की बात करती है। आपने देखा महिला जो बिल लाने की बात करी थी,
और उसको किस तरह से उन्हें टालते अनिश्चित काल के लिए उन्हें टाल दिया। कब वो बिल आने वाला है, उसकी किस तरह से बात होगी। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक 2 महिलाओं को टिकट दिया, जहां तक कि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 1 टिकट दिया। यही मैं आपके सामने वैसे कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, और यहाँ का जो एक हाल और बेहाल हो चुका है वो आप सबों के सामने है। मैं इस मौके के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे अलायंस पार्टनर, जितनी भी और पार्टियां हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये लड़ाई सिर्फ किसी एक पार्टी की नहीं है। ये लड़ाई है आसाम की जनता के लिए, ये लड़ाई है आसाम के युवाओं के लिए, ये लड़ाई है आसाम का कल्चर के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है। ये एक लड़ाई हमने शुरू करी। बाकी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इसके बाद अपनी बात रखेंगे, और उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो 5 न्याय जो कांग्रेस पार्टी ने आपके सामने लेके आए हैं उसके बारे में वो आपको जानकारी दें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो घोषणा पत्र है वो आपके सामने जल्दी आने वाला है, और आपको खुशी होगी कि जो न्याय की बात, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर आप सबों की बात, हर वर्ग की बात, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक, जो राहुल गांधी जी ने आपकी बात सुनी है उसके हिसाब से ही हमारा घोषणा पत्र तैयार हुआ है। जनता का घोषणा पत्र है, वो आपके सामने आने वाला है, और आप उसके अंदर देखेंगे कि देश का क्या आगे विजन होगा। कांग्रेस पार्टी और उसकी जितने भी अलायंस है, इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, उनका क्या आगे विजन होने वाला है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इस वर्षा के मौसम में भी, बारिश में भी आप सब लोग पधारे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ধন্যবাদ। এতিয়া আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে। जी, बरपेटा के लेकर एक सवाल उठ रहा है, जबकि आपके अलायंस पार्टनर जो अभी भी है, अभी भी बहुत सारे पार्टी को मानना है वो आप लोग को सीपीएम के जो उम्मीदवार है मनोरंजन तलवार, उनको छोड़ना चाहिए था। अभी भी उनका ये मानना है। आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? अब क्या कुछ होने वाला है बरपेटा में भी अभी भी कुछ? और दूसरा ये बात, लखीमपुर में आप लोग अभी भी आपका उम्मीदवार का नाम ऐलान नहीं किया है। मैं इस विषय के ऊपर, दोनों ही आपकी जो सवाल है उनके ऊपर मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक बात बरपेटा की आती है उसके अंदर ये बात आपकी सही है कि हमारे साथी और हमारे अलायंस पार्टनर सिर्फ असम में ही नहीं लेकिन पूरे देश में जो हमारे साथी हैं उनकी एक मांग रही है बरपेटा सीट के लिए। हमारी उनसे बातचीत हो रही है, क्योंकि क्या है कि किसी भी अलायंस पार्टनर के साथ हम अलायंस करते हैं तो दोनों ही पार्टी के जो संगठन हैं उनसे हमें बात करनी पड़ती है, चाहे वो मंडल हो, चाहे वो ब्लॉक हो, जिला कांग्रेस कमेटी हो, वहाँ की जो स्थानीय नेता हो, उन सबों से विचार करना पड़ता है, और जो हमारी अलायंस पार्टनर्स हैं उनसे भी हमें विचार करना पड़ता है। तो हम दिल्ली के लेवल पर भी और राज्य के लेवल पर भी उनसे बातचीत कर रहे हैं, और हमारे साथी हैं, हमारे पार्टनर हैं, उनके माननीय विधायक हम साथ साथ ने चुन के आए हैं, हम साथ साथ हमने चुनाव लड़ा है, तो उनके साथ हम बैठकर उस पूरे मामले को रिजॉल्व कर लेंगे। जहाँ तक एक अपोजिशन के साथ, तो क्या आप लोग बरपेटा सीट में आप लोगों कैंडिडेट के विड्रॉ करने का कुछ हो सकता है क्या, ऐसा कुछ? And given the background that 77 intellectuals of the state have written to Congress Party. ये जो आपका सवाल था, इसका मैं जवाब दे चुका हूँ कि हमारी उनसे बातचीत चल रही है, दोनों ही हम सहमति पर आ जाएंगे। हमने साथ साथ चुनाव पूर्व में भी लड़ा है और आगे भी लड़ेंगे, और देश के अंदर भी साथ साथ हमारे अलायंस पार्टनर है, वहां भी हम पूरे इंडिया अलायंस के साथ उनके साथ लड़ेंगे। तो हमारा ये एक तरह से इंडिया अलायंस का परिवार का मामला है, और उसको हम अपना सॉर्ट आउट कर लेंगे, बात कर लेंगे उनसे। हम सबों का लक्ष्य एक ही है कि आसाम का कल्चर है, आसाम की भाषा है, आसाम को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने
आसाम के साथ साथ देश को एक लूटने का काम करा है, देश को तोड़ने का काम किया है, वो सबसे बड़ी लड़ाई है हमारी। ये लड़ाई नहीं है कि यहाँ कौन मंत्री बन रहा है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, ये लड़ाई नहीं है। आज देश की लड़ाई हम साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। और एक सवाल इसी बैकग्राउंड में जो और भी 2 अलायंस पार्टी है, जैसे टीएमसी ने 4 सीटों में कैंडिडेट अनाउंस किया है और आपने 3 किया था, आम आदमी पार्टी ने 1 विड्रॉ किया और 2 में से 1 में आप लोग विड्रॉ करने के बोल रहे हैं, तो उसमें आप लोग क्या डिसीजन है? देखिए, ये बात सही है कि कुछ हमारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं, जो नेशनली और स्टेट के अंदर हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, उन पर हमारी सहमति नहीं बन पाई है, तो उसके अंदर हम फिर साथ मिलकर फ्रेंडली फाइट कर लेते हैं। तो वहां तक ये बात सही है आपकी। हम फिर भी उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो आंकलन कर ले कि कौन सी पार्टी का जो कैंडिडेट वहां लड़ रहा है वो मजबूत है। तो हम हमारे परिवार की आपसी में बात है, उस पर सहमति हो जाती है हमारी। कभी सहमति होती है एक ही कैंडिडेट पर, कभी सहमति हो जाती है फ्रेंडली के ऊपर भी। लेकिन जो इंडिया अलायंस है देश में और आसाम के अंदर, वो बिल्कुल अटूट है, वो साथ है, उसके अंदर उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फ्रेंडली अलायंस, फ्रेंडली फाइट के बाद जब आप कर रहे हैं, मतलब आर यू सेइंग कि मतलब आप या टीएमसी या फिर सीपीएम के साथ जो कैंडिडेट जो यूनाइटेड की बात कर रहे हैं वो नहीं होने वाला है? मैं पहले बोला था नॉमिनेशन विड्रॉल का लास्ट मोमेंट तक हमारा बातचीत चलेगा, इसलिए अभी फाइनल हम आपको कुछ भी नहीं बताएगा। फ्रेंडली फाइट के बारे में ये पहली बार ये शब्द आया है। आपको निवेदन कर रहा हूँ कि पूर्व में भी इस तरह का जो विधानसभा चुनाव था उसके अंदर इस तरह का एक मामला रखा गया था, और यही इसी प्रदेश में और भी रखा है। लेकिन जिस तरह से अभी भूपेंद्र मोड़ा जी ने बताया कि अभी तो नॉमिनेशन ही शुरू नहीं हुआ, विड्रॉल भी बहुत दूर है उसके ऊपर। जब तक विड्रॉल नहीं होता है, ये सवाल मेरे ख्याल से आप जब सब विड्रॉल की डेट खत्म हो जाएगी तब आप ऐसे पूछ लेना। आसाम के सीएम ऐसे प्रचार कर रहे हैं, सॉरी, आसाम के सीएम ऐसे प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देने से क्या फायदा, कांग्रेस के लोग बीजेपी में चले आते हैं, एक के सिवा बाकी सब आ सकते हैं। तो ऐसा कब होगा कि आप लोगों का ये श्योरिटी आप करेंगे कि कांग्रेस के लोग कांग्रेस में ही रहेंगे, कांग्रेस से और ज्यादा फोन नहीं होगा बीजेपी में? क्योंकि जो लोग क्रॉस वोटिंग किए थे उन लोगों को आप लोग एक्शन नहीं लिया उन लोगों के खिलाफ, तो इसी के बहाने बहुत सारे कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं। तो इसमें आप लोग क्या? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने खुद के घर के अंदर ही देख लेना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री कौन सी सीटों को जिताना चाहते हैं और कौन सी सीटों को हराना चाहते हैं खुद की पार्टी के अंदर। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पूरे आसाम के अंदर आम चर्चा हो रही है। जो एक ग्रुपिज्म है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो आपके सामने आ चुके से 300 पार, 400 पार, 500 पार भी हो जाएगा थोड़ी देर बाद। अभी 400 ही बोल रहे हैं, जब तक चुनाव शुरू होगा जब तक 500 पार भी कर देंगे। तो उस तरह की झूठी और जुमलेबाज वाली बात नहीं कहना चाहूंगा। मैं यही निवेदन करना आप उड़ीसा में गए, उड़ीसा में पार्टी 3rd पोजीशन में आ गया, ये भी खालिद साहब के बयान है। मध्य प्रदेश भी आपके अगेंस्ट में, आपके और सिर्फ ये आपके खिलाफ नहीं है, खालिद साहब का जो एलिगेशन है। देखिए, मैं इस पर निवेदन करना चाहूंगा। चलो, ये बात आपकी मान ली है मैंने कि मैं जा जाता हूँ वहाँ बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो मैं उसको नेगेटिव नहीं मानता हूँ बात, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो व्यवस्थावादी होते हैं, जो सिर्फ किसी टिकट के पीछे, पद के पीछे भागते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी साथी होते हैं जो ऊपर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, तो उनको मैं जरूर उसको मैं टॉलरेट नहीं करता। जो कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति होता है, जो जिस प्रदेश के अंदर सांसद हो, एमएलए हो, उस प्रदेश की जनता के लिए सोचता हो, वो हमारा असली साथी है। आपने देखा है जो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों के अंदर गए होंगे, तो उनकी कोई
कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की विचारधारा के साथ उनका मेल नहीं खाता। वो सिर्फ अपने कुछ पद लेने के बैठे हुए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, वो कोई लोभ हो, लालच हो, उनकी बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं। कुछ लोग आजकल ईडी सीबीआई की वजह से चले जाते हैं। कुछ लोगों के ऊपर दूसरा दबाव होता है, कोई बिजनेस का दबाव होता है, कोई लालची लोग होते हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन जहां तक आपने हमारे 2 साथियों का नाम लिया है, जिसमें हमारे माननीय सांसद जी का नाम लिया है और द्विजेंद्र शर्मा जी का नाम लिया है, वो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं। अभी मेरे से बात भी हुई थी और द्विजेंद्र शर्मा जी से मेरी कल बात हुई थी, खालिक साहब से पहले बात हुई थी। जरूर देखो, एक परिवार के अंदर नाराजगी हो सकती है, कोई सहमति नहीं बन सकती है, लेकिन हम अपने घर के अंदर बैठ के उसको सुलझा लेते हैं। तो उसको उसके लिए इस तरह की बात हमें सोचनी नहीं चाहिए, हम उसको बैठ के सुलझा लेते हैं। लेकिन एक बात सही है, एक बार जो आपने एप्लीकेशन की बात करी है, ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए, मैं जहाँ भी इंचार्ज रहा हूँ, जहाँ से मैं सांसद भी रहा हूँ, एमएलए भी कई बार रहा हूँ, मैं इस बात को कभी इनडिसिप्लिन को और जो व्यक्ति डबल गेम खेलने वाला है, जो सुबह कुछ और करता है और रात को कुछ और करता है, उन लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं, चाहे हम एक ही रह जाएंगे, एक ही एमएलए रह जाएंगे, एक ही एमपी रह जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसे 100 लोग नहीं चाहिए जो आसाम की जनता को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना ईमान और धर्म बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको सिर्फ जितेंद्र सिंह ही नहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। How confident are you that the people sharing the dais with you today will not abandon the Congress party after the Lok Sabha elections? How confident are you that the people sharing the dais with you today will not abandon the Congress party? हमारा अभी कैंडिडेट है, नहीं जो यहाँ मंच पर अभी बैठे हुए, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं। जितेंद्र सिंह जी, और एक सवाल है आपसे। पीएसी कमेटी का जो चेयरमैन रहता है, देश के अलग अलग राज्यों में वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहता है, लेकिन असम में सैकिया जी को हटाया गया है। नहीं, इस तरह की बात नहीं है। आपने एक बात को आपने नोट नहीं करा कि चाहे वो आसाम हो और चाहे देश के अंदर, आपने देखा है कि 4 सिटिंग्स जो सांसद हैं उनने कांग्रेस ज्वाइन करी। आसाम के अंदर भी जो बहुत ही सीनियर लोग हैं, अलग अलग जिलों के अंदर हैं, उनने कांग्रेस ज्वाइन करी है। आज भी शाम को, और आज शाम को भी कुछ घंटों के अंदर, जहां आप सब भी आमंत्रित हैं, आप सब आएंगे, कि बहुत ही सीनियर लोग भारतीय जनता पार्टी, अन्य पार्टी छोड़कर कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि उनका एक विश्वास है कांग्रेस पार्टी के साथ साथ, उनका विश्वास इंडिया अलायंस के साथ है, और वो आसाम की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। मेरा सवाल के जवाब तो दीजिए, कम से कम पीएसी कमेटी का जो चेयरमैन रहता है, हर भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन रहता है, लेकिन असम में ये अलग। देखिए, मैं इसके लिए आपको ये बताना चाहूंगा कि ना तो हमारे सैकिया साहब अभी आपको खुद जवाब इसका दे देंगे कि ना तो किसी को कोई हटाया जाता है और ना किसी को लगाया जाता है। ये एक इंटरनल मामला होता है सीएलपी के अंदर माननीय विधायकों का। मुझे नहीं लगता है कि उसके ऊपर हमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चर्चा करनी चाहिए, और कोई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये सिर्फ यही नहीं, लेकिन पूरे देश के अंदर, चाहे वो कांग्रेस के हो और चाहे अन्य पार्टी के हो, वो एक इंटरनली एमएलए उसको तय कर देते हैं। ये बात आपकी भी सही है कि ज्यादातर जहां अधिकांश रूप से जिस तरह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो होता है वही उसका पीएसी चेयरमैन है, एक ये परंपरा बनी हुई है। लेकिन आसाम के अंदर जो राजनीति यहाँ के मुख्यमंत्री जी करते हैं, भ्रमित करते हैं, और अपने हिसाब से पीएसी के ऊपर भी जो राजनीति वो कर रहे हैं, वो आप सब जानते हैं। उसका खुलासा मुझे करने की जरूरत नहीं है कि नाम कौन सा जाता है, स्पीकर किसको बनाता है। ये एक यहाँ सारी परंपराएं टूट चुकी है।
या एक तरह से दादागिरी की सरकार चल रही है, हिटलर शाही की सरकार चल रही है। एक और सवाल